Assalamualaikum, third year. Hope you are all fine. And how was your test? I'm fine, alhamdulillah, so far. क्योंकि अब यहाँ तो इतनी बुरी हालत हो गई है, वो कुछ पता नहीं है कब किसका क्या बन जाए. Do you want anything to discuss about the test? Key discussion of MCQs. Let's see. Okay, we can have a key discussion of MCQs. Classification of cell cycle regulators. Yes, it was from chapter number 1 and topic cell cycle. Cell cycle is a part of neoplasia actually. And cell cycle regulators include kinases and all the other regulators that I have told you. Okay, as far as regulators are concerned, this is the page of Robbins where regulators are given. It's page number 25. And you can see that in figure number 1.17, cell cycle is given. And in figure number 1.18, cell cycle regulators are given. And these regulators include cyclin-dependent kinases, then cyclins, and cyclin-dependent kinase inhibitors. These are the three classes of cell cycle regulators. MCQs लंबे होते हैं. MCQs तो लंबे होते ही हैं, जाहिर है. आप लोगों को थोड़ा अपनी स्पीड ज़्यादा करनी चाहिए. ओके, अब हम MCQs थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं. इसका और कोई सोल्यूशन नहीं है कि MCQs लंबे होते हैं. कुछ भी नहीं और हो सकता इसके बारे में. ओके जी,
ये MCQs आ गए हैं हमारे. So should I discuss all of these MCQs? Some answers are marked wrong in the key. I made sure that every answer is right. Let's see if there are wrong answers, we can correct them. But I don't think there are any wrong answers. Okay, let's start. We don't have enough time. A change in bowel habits prompts a 53-year-old woman to see her physician. On physical examination, there are no lesions noted on digital rectal examination, but her stool is positive for occult blood. A colonoscopy is performed and reveals a 6 centimeter friable mass located in the cecum. A biopsy of this mass is performed and microscopic examination shows a moderately differentiated adenocarcinoma. Now, this is adenocarcinoma of colon, and it is a known fact that KRAS mutation is responsible for adenocarcinoma of colon. There is no doubt about it. Next question, which one of the following is a feature of RNA retroviruses? So RNA retroviruses are able to replicate within host cells and at the same time induce neoplastic transformation. ये जो चीज़ है इसका रेफरेंस है रॉबिन्स के अंदर, जहाँ पे RNA दिए में वायरसेस, उनकी पैथोजेनेसिस, क्योंकि अच्छा जी, अब इसके अंदर क्या है कि RNA retroviruses replicate within host cells and they at the same time induce neoplastic transformation. अब एग्जैक्ट लाइन इसके अंदर नहीं दी हुई, बट इन्होंने ये बताया हुआ है कि दे replicate within the host and they induce neoplastic transformation. लेकिन जो ये वाले वायरसेस हैं इनके अंदर ये दोनों चीजें एक साथ नहीं कर रहे होते. रेप्लिकेशन जो डीएनए वायरसेस हैं उनके अंदर डीएनए वायरल रेप्लिकेशन और न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो रही होती. ठीक है, लेकिन जो आरएनए वायरसेस हैं उनके अंदर ये दोनों चीजें एक ही टाइम पर हो रही होती. अच्छा, which one of the following is an appropriate definition of a neoplasm? It refers to a new growth of tissue in which the growth rate exceeds and is uncoordinated with that of the normal tissue itself. No useful function and regulatory mechanisms of cell contact, inhibition, differentiation, and mitosis are defective. It persists in the same excessive manner after cessation of the stimuli which evoke the change. ठीक है जी. A 64-year-old man has noted a 5 kg weight loss along with increasing fatigue over the past year. He has experienced dull abdominal pain for the past week. An abdominal CT scan reveals a mass involving the descending colon. At laparotomy, a partial resection of the left colon is performed with removal of an encircling mass in the descending colon. Microscopically, the mass is found to be a moderately differentiated adenocarcinoma. लेबोरेटरी फाइंडिंग्स, ये आप लोगों का जो लास्ट वाला टॉपिक है ट्यूमर मार्कर्स, उसमें से है एलिवेटेड कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन इज द आंसर. नेक्स्ट is a 22-year-old woman goes to her physician for a routine examination. A palpable nodule is found in the right lobe of her thyroid gland. No lymphadenopathy is noted. A chest x-ray shows no masses. A fine needle aspirate of the nodule is performed and cytological examination reveals cells present with पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ द थायराइड. अब थायराइड जो कार्सिनोमास हैं ये रेडियोलॉजी, यहाँ पे
रेडिएशन कार्सिनोजेनेसिस वाले टॉपिक के अंदर आप लोगों का लिखा हुआ है कि थायराइड कार्सिनोमास जो हैं वो बनते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर। ठीक है, तो radiation therapy in childhood is a leading cause of papillary carcinoma of the thyroid in adults। अच्छा, blunt trauma from a fall जिन्होंने लिखा है इसकी तो कोई बनती नहीं है तो, क्योंकि नियोप्लेजिया का टेस्ट हो रहा है तो उसमें ये क्यों आएगा? या तो आप लोगों का पूरी बुक का टेस्ट हो रहा होता तो मैं समझ सकती हूँ कि फिर आप लोग कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन अभी टेस्ट ही नियोप्लेजिया का है तो नियोप्लेजिया में से ही कोई आंसर होना चाहिए। और रेडिएशन थेरेपी जो है वो इसका एक लीडिंग कॉज है। A 44-year-old woman notes a lump in her left breast while taking a shower. Her physician palpates a 3 centimeter firm, irregular, non-movable mass in the upper quadrant of her left breast on physical examination. A fine needle aspiration of this mass is performed, and cytologically the cells are consistent with infiltrating ductal carcinoma. The mass is removed with lumpectomy along with an auxiliary lymph node dissection. Which of the following findings will best predict a better prognosis for this patient? अब better prognosis पूछा हुआ है तो high cytological tumor grade, ये तो high grade tumors जो हैं obviously they are associated with low with worse prognosis। ठीक है, then tumor cells strongly estrogen receptor positive। ईस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव होने का मतलब वही है कि वो HER2 रिसेप्टर पॉजिटिव है, तो दैट इज आल्सो एसोसिएटेड विद वर्स प्रोग्नोसिस। फ्लो साइटोमेट्रिक एनालिसिस विद एन्यूप्लॉइडी एंड हाई एस फेज, ये वाली चीज़ें भी शो करती हैं कि वो उसकी जो डिफरेंशिएशन है वो पुअर डिफरेंशिएशन है और पुअर ही प्रोग्नोसिस है। नो मेटास्टेसिस इन द सैंपल्ड लिम्फ नोड, ये चीज़ जो है ये एक अच्छा साइन होता है किसी भी कैंसर के लिए कि वो जो एडजेसेंट लिम्फ नोड्स हैं वहाँ पे नहीं पहुंचा, तो दिस वन शोज अ बेटर प्रोग्नोसिस। वन रिलेटिव हु हैड अ सिमिलर टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, ये भी पुअर प्रोग्नोसिस की तरफ पॉइंट करता है ये वाला ऑप्शन भी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, नो मेटास्टेसिस इन द सैंपल्ड lymph nodes। Liver nodules that consist of congenital localized overgrowth of mature hepatocytes are referred to as hematomas। ये तो इसकी डेफिनेशन ही है हेमाटोमा की। एस्ट्रोजन रिसेप्टर से क्या रिलेशन है? HER2 जो है जहाँ पे लिखा हुआ है आप उसको पढ़ें फिर से। HER2 रिसेप्टर्स जो हैं दे आर एक्चुअली एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स, एस्ट्रोजन को रिस्पॉन्ड करते हैं और ERBB 2 भी कहते हैं इसको HER2। ठीक है, अच्छा जी, जितना ज़्यादा रिसेप्टर पॉजिटिव होता है कोई ट्यूमर, इसका मतलब है वो उसका उतना पुअर प्रोग्नोसिस होगा, क्योंकि वो अब देखिए अगर एस्ट्रोजन इज नॉर्मली प्रेजेंट इन ए फीमेल बॉडी, अगर एक ट्यूमर ऐसा है जिसके ऊपर एस्ट्रोजन रिसेप्टर हैं जो एस्ट्रोजन को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, इट मींस कि एस्ट्रोजन जो कि नेचुरली प्रेजेंट है और उसको तो वो एस्ट्रोजन जो है उसकी और रिसेप्टर भी पॉजिटिव है तो वो ट्यूमर ज़्यादा रैपिडली ग्रो भी करेगा उसकी वजह से। ठीक है ना, तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी ए पुअर प्रोग्नोस्टिक साइन। तो एस्ट्रोजन के इसके लिए जो ड्रग होती है हर्सेप्टिन, वो उन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती है और फिर एस्ट्रोजन जो है वो उन रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट नहीं करता। ये इसकी ट्रीटमेंट है जिन लोगों के अंदर ये वाला रिसेप्टर पॉजिटिव आता है उन लोगों को। Which of the following is irrelevant in flow cytometry? Okay. इरेलीवेंट इन फ्लो साइटोमेट्री। फ्लो साइटोमेट्री मैंने आप लोगों को बताया था कि एक प्रोसीजर है जिसके अंदर जो सेल्स हैं दे आर पास्ड इन ए स्ट्रीम लाइक फैशन थ्रू अ इंस्ट्रूमेंट विच इज नोन एज फ्लो साइटोमीटर। और जब वो वहाँ से गुजर रहे होते हैं तो जिन रिसेप्टर्स के लिए या जिन प्रोटीन्स और जिन एंजाइम्स के लिए हमने उनको चेक करना है, जिन सेल्स के अंदर वो सब कुछ प्रेजेंट होता है, वो वाले रिसेप्टर्स, वो वाले प्रोटीन्स, वो वाले सेल्स जो हैं वो शो हो जाते हैं, एक ग्राफ बन जाता है जिसके अंदर पता चल जाता है कि कितने % सेल्स जो हैं उनमें
वो प्रेजेंट है। तो प्रिंसिपल ऑफ डिटेक्शन इज एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। ये ट्रू आंसर है इसका। ऑब्वियसली ये जितनी भी प्रोटीन्स और रिसेप्टर्स जिन टेस्ट में आइडेंटिफाई होते हैं, दे आर ऑल बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। ठीक है। मेजर एप्लीकेशन इज इन लिक्विड ट्यूमर, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इट इज रेलिवेंट ऑफ फ्लो साइटोमेट्री। लिक्विड ट्यूमर्स के लिए ही फ्लो साइटोमेट्री यूज होती है, ब्लड के ही लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूज है। जेनेटिक म्यूटेशंस कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड। ठीक है, ये गलत आंसर है जो चार्ली है, दिस इज इररेलेवेंट। फ्लो साइटोमेट्री के थ्रू हम लोग जेनेटिक म्यूटेशंस को नहीं आइडेंटिफाई कर सकते। उसके लिए साइटोजेनेटिक एनालिसिस, सीक्वेंसिंग, पीसीआर, ये वाले सारे टेस्ट करने होते हैं। ठीक है। मल्टीपल एंटीजेंस कैन बी असेस्ड साइमल्टेनियसली, ये भी ठीक है। इट मेजर्स सेल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स से मुराद यही है कि वो उसके प्रोटीन्स जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं या एंजाइम्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो आइडेंटिफाई हो सकते हैं। Next question is, a 52-year-old man has had increasing fatigue for the past 6 months. On physical examination, he has a palpable spleen tip. Laboratory studies show a WBC count of 1,89,000, which is very, very high. The normal WBC count is 4 to 11,000. The peripheral blood smear shows many mature and immature myeloid cells. Cytogenetic analysis reveals a translocation 922. This translocation leads to formation of a hybrid gene that greatly increases tyrosine kinase activity. ये जो ट्रांसलोकेशन 922 है, इट इज ऑल्सो नोन एज BCR-ABL ट्रांसलोकेशन। तो इसका आंसर है डेल्टा। ठीक है। P53 कहाँ से आ गया? P53 का तो कोई ताल्लुक नहीं है। 922 जो है ऑनको जीन होती है, जो कि नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज जीन है। ठीक है। BCR-ABL ट्रांसफ्यूजन भी इसको कहते हैं, ट्रांसलोकेशन 922 भी कहते हैं, फ्यूजन जीन, हाइब्रिड जीन, ये सब इसके नाम। A 45-year-old healthy woman has a routine check of her health status. She has no chest pain, cough or fever. Chest X-ray taken and shows peripheral 2.5 centimeter diameter coin lesion in the right mid lung field. Which of the following biological characteristics best distinguishes this lesion as a neoplasm rather than a granuloma? ठीक है, ये तो रैपिड इंक्रीज इन साइज ये दोनों में हो सकता है। रिकरेंस फॉलोइंग एक्सिजन ये भी दोनों में हो सकता है। सेंसिटिविटी टू रेडिएशन और कीमोथेरेपी ये भी दोनों में हो सकता है। अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, ऑटोनमस ग्रोथ, ये नहीं होता उसके अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली उसके अंदर जो मैक्रोफेजेस हैं दे आर ट्राइंग टू कंटेन दी ग्रोथ। वो एक अनकंट्रोल्ड ग्रोथ नहीं होती। अगर वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो तो वो जो एक ग्रैन्युलोमा बनता है वो ही ना बने। ग्रैन्युलोमा इज एक्चुअली एन अटेम्प्ट ऑफ आवर बॉडी टू कंटेन any foreign object or any other thing which is not otherwise body is capable of getting rid of. ठीक है। और नेक्रोसिस जो है ये भी दोनों में होता है, केजियस नेक्रोसिस होता है ग्रैन्युलोमा में, और ये तो ये अनकंट्रोल्ड ग्रोथ इसका आंसर। A 70-year-old healthy man is found to have a palpable firm nodule in the prostate gland on digital rectal examination. उसका जो prostate specific antigen है, this is again a tumor antigen. It is high, 19 nanogram per milliliter. The microscopic appearance seen on biopsy of the prostate will probably be most consistent with which of the following conditions? तो ये infarction होगी। जब ये इसका ट्यूमर मार्कर इतना ज़्यादा इन हाई है तो ऑब्वियसली ये कोई कार्सिनोमा होना चाहिए। ठीक है। तो इन्फार्क्शन नहीं, रेब्डोमायोसार्कोमा नहीं क्योंकि ये स्केलेटल मसल्स में होता है, लियोमायोमा नहीं क्योंकि ये स्मूथ मसल्स में होता है, एडिनोकार्सिनोमा यस क्योंकि ये ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स में होता है। तो प्रोस्टेट के अंदर ये होगा एडिनोकार्सिनोमा। एंड क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस नहीं होगा, उसके अंदर जो PSA है इसका लेवल 4 से कम होता है। 4 इज दी कट ऑफ पॉइंट, 4 से कम होगा तो क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस है। अगर 4 से ज़्यादा है विच इज इन दिस केस इज वेरी वेरी हाई एज कम्पेयर टू 4, तो ये क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस नहीं है, एडिनोकार्सिनोमा। Which of the following properties is not related to Epstein-Barr virus? It is a DNA virus. Chronic malaria prevents the acquisition of 8-14 translocation. ये इसका आंसर है क्योंकि this is not a property related to Epstein-Barr virus. Actually, chronic malaria helps
in the acquisition of 814 translocation. It is Epstein-Barr virus positive जो है carcinoma, so that is more prevalent in the countries or in different parts of the world where chronic malaria is prevalent. Okay, so this is associated with Epstein-Barr virus, chronic malaria. LMP1 is its major oncogene, ये इसकी property है, and B cells latently infected with EBV express, ये सारी इसकी properties अपनी हैं, बाकी सिर्फ ये जो लिखा हुआ है कि it prevents की बजाय it helps in the acquisition of 814 translocation. इसके ऊपर पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है रॉबिन्स के अंदर कि हाउ क्रोनिक मलेरिया ये आके एब्स्टेन बार वायरस. अब ये बर्केट लिम्फोमा है, ठीक है. बर्केट लिम्फोमा मैंने आपको बताया था कि दो तरह के होते हैं. वन आर द एब्स्टेन बार इंड्यूस्ड Burkitt lymphoma which are present in or endemic in Central Africa and New Guinea. Okay? And the other one is Epstein-Barr virus negative Burkitt lymphoma which is prevalent in rest of the world. Okay? Epstein-Barr virus जो ये Burkitt lymphoma है, it is a disease, it is a carcinoma which is present in whole of the world, but Epstein-Barr virus induced Burkitt lymphoma is present only in African countries and areas where this malaria is also endemic. तो ये सारी इसकी explanation दी हुई है यहाँ पे कि how malaria impairs immune competence or it helps or allows sustained B cell proliferation और eventually जब वो proliferation इतनी ज़्यादा हो रही होती है तो उस वक्त उसमें ही वो mutation हो जाती है which allows development of a neoplasm. Okay. A 27-year-old woman in excellent health has a routine health maintenance examination. A 2 centimeter firm rounded mass is palpable beneath the skin of the left forearm. She has no difficulty using the arm and there is no associated pain with the mass, either in movement or on palpation. The overlying skin appears normal. The mass does not change in size over the next year. Which of the following neoplasms is she most likely to have? Melanoma. नो, मेलानोमा जो है वो ब्लैक कलर का होता है, स्किन के ऊपर होता है. मेटास्टेटिक कार्सिनोमा, ऑब्वियसली मेटास्टेटिक कार्सिनोमा में उसकी परफेक्ट हेल्थ नहीं हो सकती किसी भी सूरत. लियोमायोमा जो है इट इज ए ट्यूमर ऑफ स्मूथ मसल्स, ये भी यहाँ पे इस जगह पे ही नहीं हो सकता. आर्म के अंदर या तो स्केलेटल मसल्स होते हैं या बोन होती है या ब्लड वेसल्स होती हैं. रेब्डोमायोसार्कोमा ये एक बहुत ही खतरनाक किस्म का मैलिग्नेंट कैंसर है. रेब्डोमायोसार्कोमा इसके अंदर हेल्थ कंडीशन बहुत जल्दी डाउन होती है और इट इज़ वेरी लीथल. इसका प्रोग्नोसिस बहुत पुअर है. सार्कोमा वर्ड जिस भी कैंसर के साथ आ जाए, जिस भी मैलिग्नेंसी के साथ सार्कोमा वर्ड लगाओ, इट मीन्स के सर्वाइवल के चांसेस पेशेंट के अंदर बहुत कम है. ठीक है. इट इज़ वन ऑफ दोज मैलिग्नेंसीज के मतलब अल्लाह बचाए इससे कि इसमें बचत नहीं होती इंसान की. बहुत जल्दी ये स्प्रेड होता है और बहुत जल्दी पेशेंट की डेथ होती है विद इन a year or 18 months maximum. So lipoma is the answer. A 14-year-old healthy girl has a 0.3 centimeter reddish, slightly raised nodule on the skin of the upper part of her chest found on a routine physical examination. She states that this lesion has been present for years and has not appreciably changed in size or color. So the following neoplasms is this nodule most likely to be? अब अगेन ये जो है ये कोई मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म नहीं है, ये कोई बिनाई नहीं होना चाहिए. तो लिम्फोमा नहीं, लिम्फोमा जो है वो मैलिग्नेंट ही होता है हमेशा. विल्स ट्यूमर ये भी नहीं है क्योंकि ये बच्चों का ट्यूमर है और ये जो है वो इस तरह की इसकी प्रेजेंटेशन नहीं होती. मेलानोमा जो है ये अगेन ब्लैक कलर का वो बना होता है. ग्लायोमा जो है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है. हेमेंजियोमा इज द आंसर क्योंकि उसकी सारी अपीयरेंस यही है, रेडिश स्लाइटली रेज्ड. A 40-year-old woman has had a feeling of abdominal discomfort for the past 8 months. An abdominal CT scan demonstrates a 7 centimeter cystic mass involving the right ovary with small areas of calcification. Uterus is normal in size, and the right fallopian tube and ovary are removed surgically. Grossly, the mass on sectioning is filled with abundant hair and sebum. अब अगर मैं एग्जाम दे रही हूँ तो मैं यहीं पे से ये स्टेटमेंट पढ़नी छोड़ दूँ क्योंकि this is enough to provide me with the answer.
एक cystic mass with filled with abundant hair and sebum. Obviously it is क्या है ये? ये देखें, ये है ये टेराटोमा ऑफ द ओवरी. ठीक है, टेराटोमा टेराटोमा, ठीक है. तो टेराटोमा जो है, अब उसके बारे में उसने पूछा विच ऑफ द स्टेटमेंट इज अप्रोप्रिएट. ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से कोई रिलेशन नहीं है इसका. मेटास्टेसिस आर अनलाइकली टू बी प्रेजेंट, ये गलत है. मेटास्टेसिस आर वेरी likely to be present. Such a mass is often seen to arise in the kidneys. Kidneys के अंदर ये mass, sarcomatous element is usually present. ये भी गलत है. Primitive immature tissues resembling those from an embryo can usually be seen. Primitive tissues इसके अंदर नहीं होते, इसके अंदर पूरे well formed tissues होते हैं, जैसे कि सीबम और abundant hair है. ठीक है, primitive immature tissues नहीं होते. तो मेटास्टेसिस के अंदर बहुत कॉमनली प्रेजेंट होता है, इसलिए दिस स्टेटमेंट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, इज अनलाइकली टू प्रेजेंट. हाँ, मेटास्टेसिस के अंदर नहीं होता, बहुत कम चांसेस होते हैं इसके अंदर मेटास्टेसिस के. तो बी स्टेटमेंट जो है, दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन बाकी सबकी निस्बत, क्योंकि किडनीज में नहीं इतना होता. ये मिड लाइन, मतलब जो मिड लाइन हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, या तो उनमें होता है या फिर ये ओवरीज में और टेस्टिस में होता है. ठीक है. और सार्कोमेटस एलिमेंट, सार्कोमा क्या होता है? सार्कोमा इज ए मैलिग्नेंसी ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज. ठीक है, तो सार्कोमेटस एलिमेंट इसमें बहुत कम चांसेस होते हैं प्रेजेंट होने के. और प्रिमिटिव इमेच्योर टिश्यूज भी प्रेजेंट नहीं होते, क्योंकि इसके अंदर वो टिश्यूज होते हैं जो कि बनते हैं तीनों, ऑल थ्री जर्म लेयर्स से डराइव होते हैं टिश्यूज. वो तीनों टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं रादर देन प्रिमिटिव इमेच्योर टिश्यूज. तो बी ऑप्शन इज करेक्ट. A benign neoplasm derived from glandular epithelium is referred to as. ग्लैंडुलर एपिथेलियम से जो भी नियोप्लाज्म डराइव होगा, दैट इज नोन एज एडेनोमा. ठीक है. पेपिलोमा होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, वो भी एपिथेलियल ग्लैंडुलर एपिथेलियम से हो सकती है डराइव, बट दैट हैज टू बी इन ए शेप ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन. ठीक है. जब तक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन या पेपिलरी प्रोजेक्शन या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन या इस तरह का कोई वर्ड नहीं होता, सिमिलर वर्ड, तब तक पेपिलोमा के ऊपर आप लोग इसकी ऑप्शन करेक्ट नहीं कर सकते. ठीक है. और एडेनोमा क्या होता है? एडेनोमा या तो एक ग्लैंडुलर एपिथेलियम से डराइव्ड कोई नियोप्लाज्म होगा, या फिर एक नॉर्मल एपिथेलियम विच इज नॉन ग्लैंडुलर, और अ नॉर्मल स्ट्रक्चर विच इज नॉन ग्लैंडुलर इटसेल्फ, उसमें से अगर एक ग्लैंडुलर पैटर्न बना लेता है कोई नियोप्लाज्म, तो उसको भी हम यही कहेंगे, एडेनोमा ही कहेंगे. ठीक है. Which one of the following is considered to be a neoplastic growth? Neoplastic growth है. तो मेटाप्लेजिया सबसे जो करेक्ट आंसर है इसका, एनाप्लेजिया. एनाप्लेजिया इज अ नियोप्लास्टिक ग्रोथ. ठीक है. नियोप्लाज्म जो है, जब नियोप्लाज्म वर्ड आता है तो उसका मीनिंग है या तो मैलिग्नेंट ग्रोथ है या फिर बिनाइन ग्रोथ है. ठीक है. तो इसमें से और बिनाइन ग्रोथ वाला तो कोई भी नहीं है. Anaplasia is a poorly differentiated malignant growth. Anaplasia is the answer. Which one of the following features is most characteristic of a benign than a malignant neoplasm? Metastasizes गलत, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये तो malignancy में होता है. Tend to recur after surgical, ये भी malignancy में होता है. Usually occur singly and do not recur, ये इसका है feature. Usually non-encapsulated, no, it is mostly capsulated. And grows by expansion and implantation occurs. Growth by expansion and implantation occurs frequently. इसका सबसे अच्छा आंसर यही है. Usually occurs singly and do not recur after surgical removal. A neoplasm composed of a variety of cell types representing more than one germ layer is known as a teratoma.
Metastasis refers to spread of neoplastic cells from one part of the body to another. Which one of the following is true for metastatic neoplasm? A tendency for connective tissue neoplasms to metastasize by way of lymphatic. इसके अंदर जो सबसे कॉमन रूल स्प्रेड ऑफ neoplastic cells का है वो वही है कि जो कार्सिनोमास हैं they metastasize through lymphatics and the sarcomas जो हैं they tend to metastasize through blood vessels. ठीक है, so option B is the right one. Which one of the following is considered to be the hallmark of malignancy? मेटास्टेसिस एंड द डिग्री ऑफ इनकैप्सुलेशन. अब आपने पूरे कॉम्बिनेशन देखना है, ठीक है. इसमें मेटास्टेसिस जो दिया हुआ है दैट इज वन ऑफ द हॉलमार्क्स, बट डिग्री ऑफ इनकैप्सुलेशन इज नॉट ए हॉलमार्क. फॉर्मेशन ऑफ जायंट सेल्स, एंड ये तो बिल्कुल भी नहीं है. जायंट सेल्स तो उसमें भी होते हैं, उसमें क्या वो होता है ग्रैनुलोमा, उसमें भी होते हैं. सेलुलर एनाप्लेसिया एंड ग्रोथ बाय एक्सपेंशन ऑफ द नियोप्लास्टिक सेल्स. उसके बाद नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स एंड एविडेंस ऑफ मेटास्टेसिस. दिस इज द अल्टीमेट हॉलमार्क ऑफ malignancy. ठीक है, दोनों अनडिफरेंशिएटेड सेल्स एंड प्रेजेंस ऑफ मेटास्टेसिस. एनाप्लेसिया एंड द रेट ऑफ ग्रोथ, ठीक है, ये भी डिफरेंट हो सकते हैं. सेलुलर एनाप्लेसिया एंड ग्रोथ बाय एक्सपेंशन ऑफ द न्यूप्लास्टिक. देखिए, अब ग्रोथ बाय एक्सपेंशन जो है वो बिनाइन में भी कुछ ट्यूमर्स के अंदर ग्रोथ बाय एक्सपेंशन जो है वो काफी रैपिडली हो सकती है. इसलिए ये भी मतलब इतना करेक्ट हॉलमार्क नहीं है जितना ऑप्शन डी है. 29-year-old woman with a history of multiple sexual partners over the last 15 years has a routine physical examination with no abnormal finding. On pelvic examination, the cervix shows no abnormalities, but a pap smear is taken and dysplastic cells are reported. A cervical biopsy is performed and shows microscopic features of a minimal dysplasia, grade 1. Okay. Involving the cervical squamous epithelium. Which of the following statements is most accurate about this malignancy? E7 oncoprotein inactivates, ये उसमें से बुक की लाइन ली हुई है, ये तो इसमें कोई डाउट नहीं है. बड़का वन इसके साथ एसोसिएटेड नहीं होती. टाइप 4 जो है वो बेनाइन वाले करता है, और एंटीबायोटिक थेरेपी जो है इसमें कोई नहीं करेगी, कुछ रोल प्ले नहीं कर सकती क्योंकि ये वायरल है. पेशेंट विल बी हैविंग मेटास्टेसिस, नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बिल्कुल मिनिमल डिस्प्लेसिया है, ग्रेड 1 है, कार्सिनोमा इन सिटू है, तो ये इसमें मेटास्टेसिस नहीं हो सकता. Each of the following is an anaplastic change except. Anaplastic change क्या होता है? जिसमें poorly differentiated cells होते हैं. जो complete बिल्कुल lack of differentiation है, उसको हम anaplasia कहते हैं. Presence of undifferentiated cells, presence of abundant chromatin. Presence of undifferentiated cells obviously is the feature of anaplasia. Presence of abundant chromatin in cytoplasmic granules, ये आपकी बुक के अंदर कहीं नहीं है लफ्ज लिखा हुआ. Pleomorphism and hyperchromatism is another feature of anaplasia. Nuclei that vary in shape and size, ये भी इसका feature है. और increased mitosis, and ये सारे इसके features हैं except bravo. Presence of abundant chromatin in cytoplasmic organelles. Endocrinopathy associated with small cell carcinoma of lungs is ACTH. 35-year-old woman had a firm nodule palpable on the dome of the uterus 6 years ago, recorded on routine physical examination. The nodule is slowly increased in size and now appears to be about twice the size it was when first discovered. She remains asymptomatic. अब ये malignancy तो हो नहीं सकती क्योंकि इतना slowly growing है, और she is perfectly fine even after 6 years. ठीक है, तो ये कोई benign tumor है, तो लियोमायोसार्कोमा तो बिल्कुल नहीं हो सकता. सरकोमा वर्ड का मतलब है कि पेशेंट ने 2 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रहना अभी सो फार. अभी आप लोगों ने जब तक डॉक्टर बनने अल्लाह करे इसका ट्रीटमेंट आ जाए तो सिनेरियो डिफरेंट हो. अभी मैं आपको करंट सिनेरियो बता रही हूँ. हीमाटोमा, हीमाटोमा भी ये बिल्कुल नहीं हो सकता. मेटास्टेसिस भी बिल्कुल नहीं हो सकता. मेटास्टेसिस का मतलब है कि उसको कहीं और ऑलरेडी कैंसर है और फिर वो इतनी परफेक्टली फाइन कैसे है. लियोमायोमा, यस दिस इज द आंसर, क्योंकि यूट्रस है उसके अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं. यूट्रस के अंदर यूट्रस का जो बेनाइन है उसको हम लियोमायोमा कहेंगे, और अगर मेलिग्नेंट होगा तो लियोमायोसार्कोमा कहेंगे, क्योंकि इसको 6 साल की हिस्ट्री बताई हुई है एंड शी इज अगेन एसिम्प्टोमेटिक, तो ये लियोमायोमा, इट कैन नॉट बी लियोमायोसार्कोमा.
The process of neoplastic cells moving through the circulatory system and becoming lodged in a vessel causing obstruction is referred to as embolism. Thrombosis और embolism में ये difference है कि thrombosis remains at its place. It is connected with the blood vessel through a stalk. लेकिन embolism जो है वो एक freely flowing एक होता है particle. So embolism जो है it can go anywhere and get lodged in the blood vessel. Which one of the following neoplasms is highly invasive but seldom spreads by metastasis? Transplantation exactly. Transplantation कहाँ से आ गई इसमें? Transplantation तो transplantation word कहाँ है यहाँ पे? Transplantation का मतलब literally तो यही है ना कि वो एक जगह से जाएगी और दूसरी जगह पे जाके एक जगह से उसको रिमूव करके किसी भी ऑर्गन को या किसी भी चीज को एक जगह से रिमूव करके अगर दूसरी जगह पर लगा दिया जाए तो दैट इज a process which is known as transplantation. ठीक है, embolism is a type of transplantation. आप ठीक लाइंस पे सोच रही हैं, but when in the MCQs a better option is given, तो फिर आप लोग embolism ही को follow करेंगे, ठीक है? One of the options on another question also may be word for metastasis. Yes, of course it has same meanings. It is another word for metastasis and embolism. ठीक है, जो मेटास्टेटिक स्प्रेड है वो भी थ्रू एम्बोलिज्म ही होता है और ट्रांसप्लांटेशन भी उसको कह सकते हैं कि एक जगह से वो रिमूव होकर दूसरी जगह पे लग रही है. Which one of the following neoplasms is highly invasive? ये बुक की एक लाइन है, basal cell carcinomas of the skin है और ये it's a very high yield information. ये एग्जाम में किसी ना किसी फॉर्म में जरूर आती है. A study is performed to analyze characteristics of malignant neoplasms in biopsy specimens. The biopsies were performed on patients who had palpable mass lesions on digital rectal examination. Of the following microscopic findings, which is most likely to indicate that the neoplasm is malignant? Necrosis show करेगा? No. Atypical bizarre mitotic figures. नेक्स्ट भी देख लेते हैं हम, पहले सारी ऑप्शंस देख लेते हैं. इंक्रीज्ड न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो, लॉस ऑफ पोलैरिटी एंड प्लियोमॉर्फिज्म, ये सारे इंडिकेट करेंगे सवाए ए के. ओके इस क्वेश्चन को मैं एडिट कर लेती हूँ. अभी क्वेश्चन नंबर है 22. ठीक है, आई एम नोटिंग दिस डाउन. इस क्वेश्चन में है प्रॉब्लम, आप लोग सही कह रहे थे. ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 28 है ये. इसका आंसर है नेक्रो. इसमें क्वेश्चन होना चाहिए था which is least likely to indicate that the neoplasm is malignant, और इसका आंसर होना चाहिए था नेक्रोसिस. ठीक है, क्योंकि बाकी सारे जो हैं दे हैव सेम इम्पोर्टेंस, इसलिए को हम वो नहीं कर सकते आइडेंटिफाई. Which of the following is least likely to be used as a means of distinguishing a benign from a malignant neoplasm? अब ये लीस्ट लाइकली के बारे में उन्होंने पूछा है, तो ये वही क्वेश्चन है ऑलमोस्ट, बट डिफरेंट ट्रीटमेंट, टाइप एंड अमाउंट ऑफ नेक्रोसिस. ठीक है. A clinical study is performed of oncogenesis in human neoplasms. It is observed that some neoplasms appear to develop from viral oncogenesis with serological confirmation of past viral infection. Which of the following neoplasms is most likely to arise in this manner? T-cell leukemia, small cell anaplastic carcinomas. ये तो एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है. इसका आंसर है T-cell leukemia. A child is born with a single functional allele of a tumor suppressor gene. Obviously, की बात है रेटिनोब्लास्टोमा की. आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन भी रेटिनोब्लास्टोमा लिखा हुआ है. More than 200 years ago, a London surgeon, Sir Percival Pott, correctly attributed scrotal skin cancer in chimneys with superonic exposure. Which one of the following is not true for chemical carcinogens? अच्छा जी, इन सबको हम पढ़ते हैं एक एक
सबको one by one. A chemical carcinogenesis is dose dependent and the effects are irreversible carcinogenic effect, but they augment the action of co-carcinogens. अब उन्होंने पूछा which of the following is not true. तो आपने बताना है जो नहीं है ट्रू, ठीक है। अब इसके इफेक्ट्स जो होते हैं दे आर रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल नहीं होते इफेक्ट्स इसके अनलेस कोई म्यूटेशन नहीं हो गई, ठीक है। इन केमिकल कार्सिनोजेनेसिस देयर इज अ लैग पीरियड बिटवीन एक्सपोजर एंड द अपीयरेंस ऑफ नियोप्लाज्म्स, ये तो करेक्ट ऑप्शन है। There is strong evidence that carcinogenic chemicals ultimately exert their effect by binding to DNA to induce a mutation. ये भी correct है. Chemical carcinogens are of diverse structure and both synthetic and natural products are capable of causing neoplastic transformation. ये भी correct option है. Pro-carcinogens are chemical agents which by themselves have no carcinogenic effect. Of co-carcinogens भी correct option है. तो फर्स्ट वाली जो है इसके अंदर हमें डाउट है, तो इसी को हम मार्क करेंगे, दिस इज दी रॉन्ग आंसर, क्योंकि एक तो इफेक्ट्स इरिवर्सिबल नहीं होते जब तक म्यूटेशन नहीं हो जाती, उससे पहले तक इफेक्ट्स रिवर्सिबल हैं। अब benign epithelial cell neoplasm derived from non-glandular surfaces in the form of finger-like projections is called as papilloma. इसका आंसर papilloma है। The study of neoplastic growth is referred to as oncology. Okay, a 52-year-old woman feels a lump. अब ये ऊपर वाला सारा क्वेश्चन जो है सेल साइकिल से के बारे में ये क्वेश्चन है, तो the neoplastic cells are more likely to be in which of the following phases of the cell cycle. अब neoplastic cells हैं, अब क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है, पीछे वो जो है वो सारा सिनेरियो बनाया हुआ है, उसको आप लोग स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अब हम जब एग्जाम देने आते हैं तो इस तरह के टैक्टिक्स यूज करने पड़ते हैं, आप लोगों को अपने आप को यूज टू करना चाहिए इन चीज़ों से। आगे आप लोगों ने FCPS देना है, किसी ने MLE देना है, किसी ने प्लैब देना है, तो आप लोग जब तक अपने आप को इतना स्मार्ट नहीं बनाते, आप लोग एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि अभी से आदत डालना है, ठीक है। इस तरह के जो लाइंस हैं कि ऑब्वियसली ये सारा ऊपर सिनेरियो डाला हुआ है, इस सारे सिनेरियो को सिर्फ डाला हुआ है, इसका क्वेश्चन से कोई ताल्लुक नहीं है इतना खास। क्वेश्चन यही है, द neoplastic cells are more likely to be in which of the following phases, तो वो S फेज है, सिंथेसिस फेज, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा सिंथेसिस हो रही होती है। अच्छा जी, अब इसमें क्या पूछा हुआ है, हेमोप्टिसिस है, नो एबनॉर्मल फाइंडिंग्स, टेस्ट एक्सरे डेमोन्स्ट्रेट्स a 6 centimeter perihilar mass, sputum sample is collected and sputum cytology report reads atypical cells present suggestive of squamous cell carcinoma. अब ये squamous cell carcinoma of the lungs है, ये उसके लिए रेडॉन इज दी रिस्पॉन्सिबल एलिमेंट, ठीक है। वो जो टेबल है एनवायरमेंटल कार्सिनोजेंस का, वो आप लोगों ने पूरा अच्छी तरह याद होना चाहिए, उसमें से आएंगे क्वेश्चन। A 44-year-old woman who has had multiple sexual partners for the past 30 years has an abnormal pap smear with cytological changes suggesting human papillomavirus infection. Without treatment, she is most likely to develop which of the following lesions? Adenocarcinoma नहीं, squamous cell carcinoma इसमें होगा, क्योंकि cervix के अंदर सारी stratified squamous epithelium होती है, ठीक है। cervical carcinoma करता है ना ये, तो वो cervical squamous cell carcinoma है। A 50-year-old man has felt vague abdominal discomfort for the past 4 months. On physical examination, he has no lymphadenopathy and no abdominal masses or organomegaly can be palpated. Bowel sounds are present. An abdominal CT scan shows a 20 centimeter retroperitoneal soft tissue mass obscuring the left psoas muscle. A stool specimen tested for occult blood is negative. ठीक है, अब ये वाली इंफॉर्मेशन क्यों दी है इन्होंने? सीटी स्कैन पे पता चला है कि रिट्रोपेरिटोनियल है। अब रिट्रोपेरिटोनियल कौन कौन से ऑर्गन होते हैं? सबसे पहले तो कोलन के ऊपर शक है, लेकिन अकल्ट ब्लड नहीं आया स्टूल के अंदर, इसका मतलब है कि कोलन के अंदर ये कार्सिनोमा नहीं है, ठीक है। ये कोई और ऑर्गन है जो कि रिट्रोपेरिटोनियल है। तो अब रिट्रोपेरिटोनियम में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बच गए आपके पास? लाइपोसार्कोमा हो सकता है ये,
लाइपोसार्कोमा होगा जो फैट सेल्स का सार्कोमा है। मेलानोमा क्योंकि इरिथ्रोपेरिटोनियल है, वहाँ पे फैट सेल्स बहुत कम होते हैं। अगर पेरिटोनियल होता तो फिर हम फैट सेल्स कह सकते थे। मेलानोमा का कोई चांस नहीं है। हेमाटोमा का कोई चांस नहीं है। लिम्फोमा का, लिम्फोमा इज अ मैलिग्नेंसी। लिम्फोमा के अंदर अगर होगा तो लिम्फोडिनोपैथी होनी चाहिए, ठीक है। तो एडिनोकार्सिनोमा भी नहीं हो सकता इसमें। फिर ये लाइपोसार्कोमा ही एक ऑप्शन बचती है कि ये यही हो सकता है, ठीक है, बाकी सारे नहीं हो सकते। जब हमने बाकी के देखे तो हमने देखा कि वो नहीं, यही एक बच्चा है, ठीक है। मेलानोमा नहीं हो सकता, हेमाटोमा नहीं हो सकता, लिम्फोमा नहीं हो सकता, एडिनोकार्सिनोमा नहीं हो सकता। A 10-year-old man has worked for 10 years in a factory producing plastic pipe. प्लास्टिक वाला कौन करता है, से रिलेटेड कौन सा वाला है? प्लास्टिक ऑब्वियसली होता है, पीवीसी है। अब ये लिवर के अंदर उसके हो गया कैंसर, विच सब्सटेंस इज मोस्ट लाइकली लेड टू डेवलपमेंट। तो ऑब्वियसली ये विनाइल क्लोराइड क्वेश्चन में ही भेज दिया है, प्लास्टिक पाइप है, विनाइल क्लोराइड ही होगा। A malignant epithelial cell plasm derived from any of the three germ layers is referred to as teratoma. खत्म हो गया क्वेश्चन। Isn't it carcinoma? कौन से वाले क्वेश्चन में? अच्छा, इसी लास्ट वाले क्वेश्चन में कार्सिनोमा। देखें, मेलिग्नेंट एपिथेलियल से अगर आप कह रही हैं कि कार्सिनोमा, तो फ्रॉम एनी ऑफ द थ्री जर्म सेल लेयर्स विद, ठीक है, हाँ जी सही कह रही हैं जी, कार्सिनोमा ही होगा क्योंकि ऑल ऑफ द थ्री अगर होता तब टेराटोमा होना चाहिए था। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर है कार्सिनोमा। ठीक है जी, एनीथिंग एल्स? थैंक यू ऑल्सो। फरियाल, कायनात, मानूर, शाजमीन, मोहम्मद ताहिर, मोहम्मद अवैस, इश्तियाक, थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। आप लोगों में से किसी की फैमिली में या कहीं पे किसी को कोरोना हुआ है? एससीक्यूज, एससीक्यूज भी करने हैं आप लोगों ने? कौन सा वाला एससीक्यू कंफ्यूज कर रहे हैं आप लोगों को? एससीक्यूज तो इजी थे। मेरा आप लोगों को यही मैसेज है कि अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों को समझाते रहें, बाकी अल्लाह ताला पे छोड़ दें। अब जाहिर है जिस जिन लोगों जो होना है वो तो होना ही है ऑब्वियसली, लेकिन हमें अपने आप को बचाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सब ये जो कह रहे हैं लोग कि सबको होगा, दिस इज नॉट ट्रू। सबको क्यों होगा? जो लोग अपने आप को बचा रहे हैं, दोज हु आर फॉलोइंग ऑल द प्रिकॉशनरी मेजर्स, उनको क्यों होगा? उनको नहीं होगा ये, ठीक है। इंसान अशरफुल मखलूकात है, ये वायरस हमसे बहुत छोटी चीज़ है। हम इसको आराम से कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम चाहें। हमारी विल होनी चाहिए एज अ नेशन। Hyperchromatism and abundant chromatin material, aren't these the same things?
यस, टू सम एक्सटेंट यस। हाइपरक्रोमेटिज्म का मतलब वैसे एग्जैक्टली ये है कि उसके अंदर जो क्रोमेटिन है वो पिगमेंट ज़्यादा पिक कर रहा है। ठीक है, हाइपरक्रोमेटिज्म जो है इसका मतलब होता है बहुत डीप पर्पल कलर पिक कर रहा है वो, एंड दैट इज ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ abundant क्रोमेटिन मटेरियल, क्योंकि उसके अंदर सिंथेसिस बहुत ज़्यादा हो रहा है। SCQs की मेरे पास है नहीं इस वक्त, इसलिए मैं डिस्प्ले नहीं कर सकती। आप लोगों को जिस क्वेश्चन का पूछना है, क्योंकि बुक में से ही बनाई होती है की, मैं आपको बुक में से दिखा देती हूँ। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ऑफ लंग कार्सिनोमा इन हाई ग्रेड मेलिग्नेंसीज, मैम इसका क्या आंसर है? अच्छा, लंग कार्सिनोमा इन हाई ग्रेड मेलिग्नेंसीज, हाई ग्रेड का मतलब है पोअरली डिफरेंशिएटेड। जो हाई ग्रेड है उसका मतलब होता है पोअरली डिफरेंशिएटेड। ठीक है, तो अब पोअरली डिफरेंशिएटेड या जो एनाप्लास्टिक ट्यूमर है उसके जो फीचर्स हैं वो आपने इसमें लिखने थे। फॉर एग्जांपल डिफरेंशिएशन एंड एनाप्लेसिया, ये है। ठीक है जी, प्लियोमॉर्फिज्म है अगर, तो आप लोगों ने इसके अंदर लिख देना है कि वेरी मार्क्ड वेरिएशन इन साइज एंड शेप, और उसके बाद एबनॉर्मल न्यूक्लियर मॉर्फोलॉजी जो है इसके अंदर भी बिल्कुल डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज न्यूक्लियाई, हाई एनसी रेशो, abnormally large nucleoli which are more darkly staining। उसके बाद माइटोसिस के अंदर आपने लिख देना है bizarre, atypical bizarre mitotic figures, then complete loss of polarity, and there can be also other changes, for example central necrosis। ये उसके अंदर आ जाना था हाई ग्रेड नियोप्लेसिया। Anything else? That's great। अब शुक्र है कि ये चैप्टर खत्म हो गया है। अब हम हीमोडायनामिक्स करेंगे नेक्स्ट टाइम से। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।